हमारा फर्स्ट टाइप का जो इंटीग्रल था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप पे। तो सेकेंड टाइप कैसा है? अगर इंटीग्रल 0 to 2 पाई फंक्शन ऑफ कॉस थीटा या साइन थीटा बाई फंक्शन ऑफ कॉस थीटा या साइन थीटा डी थीटा, ऊपर भी कॉस थीटा का और साइन थीटा का फंक्शन और नीचे भी कॉस थीटा और साइन थीटा का फंक्शन होगा, तो इस टाइप का इंटीग्रल होगा। So, while dealing with this type of integral, if the numerator involves a sine or cosine function, numerator पे साइन और कोसाइन फंक्शन होगा तो इट इज़ मोर कन्वीनियंट। इसको हम उस अगले टाइप के इंटीग्रल को हम अगले वाले मेथड से भी कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। सो while dealing with this type of integral, we if the numerator have involved the sine or cosine function, it is more convenient to more convenient to use this method. In this method, we replace the numerator only by e to the power I theta. Replace such a function by corresponding exponential function and then evaluate the imaginary or real part of this integral as the case may be. केस के हिसाब से, इंटीग्रल के हिसाब से हम इवेलुएट करेंगे। प्रीवियसली वी नो कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम व्हिच इज एफ ए इक्वल्स टू 1/2 पाई क्लोज इंटीग्रल सी एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड। नाउ if we assume phi z is fz by z minus a, then phi z is a function which is analytic all point except at, assume this is the point z is equals to a, so here phi z is analytic all point inside and on the closed curve C except at the point z equals to a. Then we can say that if we put phi z here, so this will become closed curve integral phi z dz is 2 pi I into f of a, and this f of a is called residue of phi z. F of a is called residue of phi z at point a, z equals to a. So residue of simple pole, you already read this. So residue of some function phi z at z equals to a is simply limit z tends to a z minus a phi z, and if we put the value of phi z, z minus a phi z is fz by z minus a. Z minus a cancel out, and if we put the value of z in fz, then fz becomes fa. This is residue. This is the residue of phi z at point z is equals to. So the Cauchy's integral formula can be written in the form integral phi z dz equals to 2 pi I residue of phi z at some point z equals to a, which is inside this closed contour C. This point A is any point inside this circle closed contour C where the function phi z is not analytic or phi z have singularity. So एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो समझ आ जाएगा। Here we have sine and cosine function in numerator as well as denominator. So here
we replace this numerator by I plus e to the power I theta. So this will be I plus cos theta plus I sin theta, and we separate real part and imaginary part. We get real part as cos theta and imaginary part 1 plus sin theta. So we can say that this integral equals to imaginary part of the integral I plus e to the power I theta by 3 plus cos theta d theta. Here imaginary part of this integral will be this by 3 plus this by 3 plus cos theta and this by 3 plus cos theta. This is the real part of this integration and this is the imaginary part of this integration, which is this. So this way we take it. Now the method is same like previously. Let assume a circle of radius 1 centered at origin. So the equation will be z equals to e to the power I theta and dz will be I e to the power I theta d theta, and dz by iz will be d theta, and cos theta will be 1 upon 2 z plus 1 upon z. This thing will be same, and now put it in this integration. So imaginary part of, and as we put z is e to the power I theta, that is this unit circle, this circle mod z equals to 1. Now this is 0 to 2 pi, so this integration along this closed curve C, and I e to the power I theta is z, so I plus z by 3 plus cos theta is z plus 1 by z, and d theta is dz by iz. Now we simplify that part. Imaginary part of if we simplify this, we will get this. Here we have to find pole of this function. So poles, how to find poles? Simply put denominator equals to 0. Now z equals to minus b plus minus root over b square minus 4ac by 2a. This will be minus 6 plus minus 4 root 2 by 2. 4 root 2 by 2. So minus 3 plus 2 root 2. Say alpha, this value is say alpha, and minus 3 minus 2 root 2, say this value is beta. Now this we find that alpha is lies somewhere here and beta here, because here minus minus, so beta will be more than minus 3. So this is here somewhere here, and here minus 3 plus 2 root 2, so minus 3 plus 2, that is minus 1, and here minus, so alpha will be
inside this circle here. So we consider only the alpha value, and we can write this as this as z minus alpha into z minus beta. So z equals to alpha lies inside the contour C. So residue at z equals to alpha of fz, limit z tends to alpha z minus alpha इंटू एफ जेड क्या था यहाँ पे हम देख सकते हैं एफ जेड 2 इंटू आयोटा प्लस जेड बाई आयोटा इंटू जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 1, एंड इस जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 1 को हम लिख सकते हैं जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस बीटा. सो हम लिखते हैं 2 इंटू आयोटा प्लस जेड 2 इंटू आयोटा प्लस जेड. नाउ हम इस जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 1 को लिखेंगे जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस बीटा. सो आयोटा इंटू जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस बीटा. सो जेड माइनस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा. और हम अगर जेड के वैल्यू पुट कर दे तो 2 इंटू आयोटा प्लस जेड के जगह अल्फा अपॉन आयोटा अल्फा माइनस बीटा. सो अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे 2 आयोटा प्लस नहीं माइनस 3 प्लस 2√2 अपॉन आयोटा माइनस 3 प्लस 2√2 प्लस 3 प्लस 2√2. 3 कैंसिल हो जाएगा. 2 इंटू आयोटा माइनस 3 प्लस 2√2 अपॉन आयोटा 4√2. दिस इज द रेसिड्यू. ये था हमारा इंटीग्रल, और हम कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम या फिर कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम दोनों में से कोई एक अप्लाई कर सकते हैं, दोनों एक ही है. सो कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम से हम जानते हैं एफ जेड डी जेड होता है 2 पाई आई समेशन ओवर रेसिड्यू ऑफ एफ जेड. तो यहाँ पे जो क्लोज कॉन्टूर था अल्फा, उसका रेसिड्यू भी हम निकाल लिए हैं. तो यहाँ पर होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 पाई आई इंटू यहाँ पर आयोटा था, आयोटा कैंसिल, 2 कैंसिल. तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई बाई 2√2 माइनस 3 प्लस 2√2 बाई √2. तो इमेजिनरी पार्ट ये पाई मल्टीप्लाई था. हम अगर इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग कर दे तो ये होगा इमेजिनरी पार्ट और ये होगा रियल पार्ट. सो इक्वल्स टू पाई बाई √2. हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को लेंगे. सो क्या हुआ हमारा इंटीग्रल 0 to 2 पाई 1 प्लस साइन थीटा बाई 3 प्लस कॉस थीटा डी थीटा हुआ हमारा पाई बाई √2.
ये रहे दो और प्रॉब्लम, ये आप खुद से सॉल्व करना, अगर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ पर cos 2 थीटा को हम e टू द पावर आई 2 थीटा से रिप्लेस कर देंगे और रियल पार्ट ले लेंगे, क्योंकि e टू द पावर आई 2 थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। सो हम रियल पार्ट ले लेंगे तो ये वाला इंटीग्रेशन आएगा। यहाँ पर भी सेम, और जो मेथड यहाँ पर बताया उस तरीके से ये दो इंटीग्रल कर लेना। अब हम आते हैं हमारे तीसरे टाइप के इंटीग्रेशन पे। इस टाइप के इंटीग्रेशन पे इस होगा 0 टू पाई एफ ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ये सिमिलर टाइप का है, बस यहाँ पर जो लिमिट होगा वो 0 से पाई तक होगा। तो इसको हमें लिमिट को 0 टू 2 पाई करना है। तो 0 टू 2 पाई कैसे करना है, तो हम डेफिनेट इंटीग्रल का एक फार्मूला यूज करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल का फार्मूला था कि 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स होगा इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई किया तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 टू हाफ ऑफ 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। ए की जगह पर हम अगर पाई से रिप्लेस कर दे तो क्या होगा, 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू हाफ ऑफ 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स। कब एक्स नहीं, यहाँ पर थीटा होगा, पाई से रिप्लेस किया तो कब होगा, अगर एफ ऑफ 2 पाई, ए के जगह पाई और एक्स के जगह थीटा, एफ ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू एफ थीटा हुआ तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट 0 टू पाई 1 प्लस 2 cos थीटा बाई 5 प्लस 4 cos थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर 0 टू पाई है, तो यहाँ पर एफ थीटा क्या है, एफ थीटा है 1 प्लस 2 cos थीटा बाई 5 प्लस 4 cos थीटा। अगर एफ थीटा को हम 2 पाई माइनस थीटा कर दे तो 2 cos 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 cos 2 पाई माइनस थीटा। और हम जानते हैं तो cos 2 पाई माइनस थीटा होगा cos थीटा। सो ये हुआ 1 प्लस 2 cos थीटा बाई 5 प्लस 4 cos, तो ये होगा एफ थीटा। तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसको ये जो इंटीग्रल था उसको हम हाफ ऑफ इंटीग्रल 0 टू 2 पाई 1 प्लस 2 cos थीटा बाई 5 प्लस 4 cos थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। अब हम यहाँ फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर आई थीटा भी पुट कर सकते हैं, फिर कैलकुलेट कर सकते हैं, और या फिर सेकंड मेथड की हिसाब से कॉस थीटा की जगह ई टू द पावर आई थीटा पुट कर सकते हैं और रियल पार्ट ले सकते हैं। कोई सा भी एक मेथड हम ले सकते हैं। इफ वी टेक जेड इज ई टू द पावर आई थीटा, दैट इज क्लोज कॉन्टूर यूनिट सर्किल, सी इज ए यूनिट सर्किल, इसका रेडियस 1 होगा एंड सेंटर 0 पे 0 पे। तो डी जेड बाई आई जेड इज डी थीटा एंड कॉस थीटा इज हाफ ऑफ जेड प्लस 1 बाई जेड।
and put all this thing in this integral and evaluate this by the previous method we discussed. So that is it all for today. Hope you like this video. If you like this, please like, share and comment. Thank you.